السلام علیکم۔ ایک مظلوم عورت کی یہ ہے پراسرار داستان، ایک جن نے اس پر کیا قبضہ لیکن کیوں۔ یہ کہانی بہت ہی ہیبتناک ہے، اس لیے شیئر کیجیے گا اور برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ میرے ابو ایک ویران سے اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ ان کو رہنے کے لیے جو مکان ملا تھا اس کے صحن میں کچی قبریں اور پرانے درخت تھے۔ قبروں کو ہموار کر کے درختوں کو ادھر ہی رہنے دیا گیا تھا۔ میری پیدائش کے وقت سے میری امی کے ساتھ میری خالہ رہتی تھی اور بڑے بھائی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ وہ مکان آصف زدہ مشہور تھا۔ کسی نے بھی سرکاری ملازم کو یہ بتا کر ہمدردی جتانے کی کوشش نہ کی، یعنی امی اور میری خالہ کو پتہ ہی نہیں تھی یہ بات کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ ایک روز امی سبزی پکا رہی تھی۔ امی نے خالہ سے کہا آج شہر سے مچھلی آ جائے تو کتنا مزہ آ جائے۔ امی نے ابھی یہ الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک تازہ مچھلی جس کا وزن کوئی 4 کلو ہوگا قریب ہی آن گری۔ سب حیران پریشان ہو گئے۔ باہر نکل کر دیکھا، چھت پر چڑھ کر ہر طرف دیکھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر اکثر امی کو صبح کے وقت جھاڑو دینے کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں اور محسوس ہوتا جیسے گھر میں کوئی چل پھر رہا ہے۔ اس بات کا ذکر امی نے کئی بار دوسروں سے کیا مگر سب نے اس بات کو وہم قرار دے دیا۔ ایک روز تو گھڑے یعنی مٹکوں اور بالٹیوں سے پانی خالی تھا، سب کے سب خالی تھی۔ کوئی تازہ نہا کر نکل چکا تھا مگر وہ کون تھا؟ ہمارے گھر کا تو کوئی فرد نہیں تھا۔ میری پیدائش کے وقت امی 20 روز تک کمرے کے اندر ہی رہیں۔ 21 دن کے بعد مجھے امی کو کمرے سے باہر نکالا گیا تو میں ایک دم چلائی اور نیلی پڑ گئی اور میرا رنگ بھی سیاہ پڑ گیا۔ میں 4-5 منٹ تک بے ہوش پڑی رہی۔ سب نے سمجھا کہ مجھے ہوا لگ گئی ہے مگر بے ہوشی کے یہ دورے مسلسل جاری رہے اور میں ہفتے میں کئی بار بے ہوش ہو جاتی۔ میرا خالہ زاد بھائی عاصم جو 10 برس کا تھا اور دوسرے شہر میں رہتا تھا، ہم دونوں ایک ہی دن ساتھ بے ہوش ہو جاتے۔ میری عمر 5 سال کی ہو گئی اور عاصم بھی 10 سال کا ہو گیا۔ امی ابو نے ہر قسم کے علاج کرائے مگر ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بڑی ہوتی گئی۔ عجیب واقعات گھر میں ہونے لگے جس سے گھر والوں کو بھی شک ہونے لگا کہ میرے اندر کوئی اور طاقت کام کر رہی ہے۔ اس وقت میرے ابو ایک اور اسکول میں آ گئے تھے جو کہ ہمارے شہر سے کچھ دور تھا۔ وہاں اس وقت نہ تو کوئی پکی سڑک تھی نہ گاڑی کے لیے کوئی راستہ تھا۔ راستے میں ایک بہت بڑا جنگل تھا جس میں پگڈنڈی کے راستے لوگ آتے جاتے تھے۔ ہم لوگ سید ہونے کی وجہ سے سخت پردہ کرتے تھے۔ ایک دوپہر سب لوگ سو رہے تھے۔ میں 50 میل دور ابو کے پاس نورپور پہنچ گئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو حیرت سے رہ گئے۔ ہبا، وہ حیرانی سے بولے، بیٹی تم کدھر سے آئی ہو اور یہاں کیسے پہنچی؟ ابو، میں ایک بارات کے ساتھ آئی ہوں۔ بارات کہاں ہے؟ کس کی ہے؟ میری سہیلی فرحت کی بہن کی شادی ہے، اسی کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ لوگ اس طرف پیچھے رہتے ہیں۔ میں نے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس قدر گرمی اور حبس اور گٹھن کے باوجود مجھ میں تھکن کے آثار بالکل بھی نہ تھے۔ میں نے بالکل نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے جیسے ابھی کسی نے نہلا کر پہنائے ہوں۔ ابو نے دور دور تک دیکھا، نہ کوئی آدم نہ آدم ذات۔ میری پریشانی کی انتہا نہ تھی۔ وہ میرے ساتھ درختوں تک آئے۔ آپ یہ اسم 3 بار پڑھیں۔ میں نے درختوں کے نیچے والی زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی زمین میں سیڑھیاں کھل جائیں گی، اس کے نیچے سارے لوگ اور بارات بھی ہے۔ تم کس گاڑی پر آئی ہو؟ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ ابو خوفزدہ ہو کر بولے۔ میں گاڑی پر نہیں آئی، ہوا میں اڑ کر آئی ہوں۔ میں کھڑے کھڑے ہوا میں بلند ہو سکتی ہوں، میں اوپر اچھلتے ہوئے بولی۔ صبح جب ابو مجھے گھر لے کر آئے تو سب حیران ہو کر رہ گئے۔ اسے تو ہم نے اندر سلایا تھا، یہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ اس بات پر دادا جان بہت پریشان ہوئے تھے۔ میرے دادا جان نے بہت سے فلیٹ بنا رکھے تھے جن میں کئی کرایہ داروں کے علاوہ دوسرے شہروں کے لوگ بھی رہائش کے لیے آتے رہتے تھے جو مری جاتے ہوئے قیام کرتے اور اچھا خاصا کرایہ مل جاتا تھا۔ وقت آہستہ رینگتا رہا۔ میں گھر کا سارا کام جلدی جلدی ختم کر دیتی۔ ہبا، میری امی اکثر مجھے کہا کرتی، کچن صاف کرو، برتن دھو دو، جتنے برتن الماریوں میں ہیں انہیں دھو کر صاف کر کے رکھو، فرش پر صاف کپڑا لگاؤ۔ یہ سب کہہ کر امی پڑوس میں زینب کے گھر چلی جاتی اور 1 گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آتی تو سارا گھر چمک رہا ہوتا، سارا کام ختم ہو چکا ہوتا، یہاں تک کہ کپڑے استری کر کے میں ٹانگ دیا کرتی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر گھر والے سخت حیران اور پریشان تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے اندر کوئی جناتی طاقت کام کر رہی ہے۔ میرے خاندان کے
सब अफराद हैरान थे। एक रोज मेरी अम्मी की सोने की बालियां जो दादी जान ने उन्हें बनवा कर दी थी गुम हो गई। मैंने जहन में महसूस कर लिया था कि बालियां मेरी एक करीबी रिश्तेदार के संदूक में मौजूद हैं। मेरे कहने पर मेरी अम्मी उनके घर गई और संदूक से बालियां निकाल के ले आई। एक शाम मैं स्कूल की लड़कियों के साथ पार्क में पिकनिक मनाने के लिए गई। वहां एक नहर में गिर पड़ी और डूब गई। लड़कियों ने एक हंगामा खड़ा कर दिया। हर तरफ शोर उठा और मुझे चंद आदमियों ने बाहर निकाला और बोले, लड़की मर गई है। मेरे घर वालों ने सुना तो धाड़े मार मार कर सब रोने लगे। मामू और दादा खामोश बैठे आने जाने वालों के साथ दुआएं कर रहे थे। जिस वक्त मैं नहर में डूबी थी, उसके 10 मिनट के बाद मैं अपने मामू के घर दूसरे शहर में जा पहुंची थी। वो सब हैरान थे कि मैं हजारों मील का सफर करके यहाँ कैसे पहुंच गई, क्योंकि ट्रेन का स्टेशन वहां से काफी दूर था। अगर मैं सुबह के वक्त घर से चलती तो भी 4-5 घंटे का सफर था। मेरे मामू का कहना था कि मैं छत के रास्ते सीढ़ियां उतर कर सहन में आई हूँ। तुम्हारे साथ कौन आया है? अब्बू कहाँ है? भाई किधर है? उन्होंने सवालों की बौछार कर दी थी। चंद मिनट तो सब यही समझे कि वो लोग बाहर होंगे और मुझे अंदर भेज कर मजाक कर रहे हैं। अब्बू और भाई तो दूसरे शहर गए हुए हैं। मैंने उनसे कहा, आपका पड़ोसी रियाज मिला था, उसके हवाले मुझे कर गए हैं और मुझे वो यहाँ लेकर आया है। दूसरे दिन जब रियाज की माँ से पूछा गया तो वो बोली, मेरा बेटा तो 3 दिन से कहीं और गया हुआ है, यहाँ है ही नहीं, कल आएगा। दूसरे रोज जब रियाज वापस आया तो उससे पूछा गया, उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो इसे लेकर नहीं आया। उस दिन के बाद मेरी बेहोशी के दौरे पड़ते गए। कई आमिरों ने मुझ पर बड़ी सख्तियां की। सख्त सर्दी के मौसम में ठंडे पानी के घड़े मेरे ऊपर डाले जाते, सख्त किस्म की धुनियां दी जाती, मेरी नाक और आंखें सूज जाती, मेरे गिर्द चाकू से हिसार बनाए जाते। मेरा घराना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हर वो काम करने लग गया जिससे मैं सेहतयाब हो जाऊं, मगर बीमारी आमिलों के टोटकों से ज्यादा बढ़ गई। यूँ लगता था जैसे मुझ पर असरअंदाज नादीदा हस्ती चिढ़ गई है, यानी जिन्नाती हस्ती चिढ़ गई है। वो जुमेरात का दिन था। एक आमिर साहब दूर दराज के इलाके से आए हुए थे। उनका दूर दूर तक बहुत चर्चा था। अब्बू ने सब हालात उन्हें बताए। निसार साहब वो अब्बू से बोले, कल अपनी बच्ची को लाएगा, अगर इस पर किसी चीज का साया है तो वो मेरे कमरे में दाखिल नहीं होगी, भागने की कोशिश करेगी, मेरे साथ आंख मिलाकर बात नहीं करेगी, मैं जो तावीज दूंगा वो नहीं पहनेगी और जो जलाने के तावीज होंगे उन्हें संभाल कर रखेगा, वरना जलाने से पहले ही गायब हो जाएंगे। अब्बू दूसरे रोज जब मुझे कई बहानों से वहां ले गए तो मैं अंदर नहीं जाती थी। वो बारिश बुजुर्ग मुझे, यानी वो बहुत खूबसूरत नूरानी बुजुर्ग मुझे बड़े प्यार से अंदर बुलाते, मगर मैं न जाती थी। आखिर कई लोग मुझे पकड़कर उनके कमरे में ले गए। जब मैं वहां गई तो मैंने उनसे बात न की और ना ही उनकी तरफ देखा। पीने के तावीज़ों से मैंने इनकार किया। उनकी बातें जिनका जिक्र उन्होंने किया था सब ठीक निकली। मुझे वहां ये कहकर लाया गया था कि तुम्हारी फूफी की लड़की रानी की मंगनी है। अगर वो ये न कहते तो मैं हरगिज वहां न जाती। उन बुजुर्ग से मायूस होकर अब्बू ने डॉक्टरों को दिखाना शुरू कर दिया। पाबंदी से अच्छी खुराक दी जाती, घुमाया जाता, रिश्तेदारों के घर ले जाया जाता, शायद मैं ठीक हो जाऊं। आखिर गुजरात के रहने वाले एक शाह साहब को बुलवाया गया। उन्होंने एक प्याले के अंदर कुछ लिख कर दिया जिसमें पानी डालकर पिलाया जाता। कुछ तावीज दिए जो उसी शाम मेरी बेहोशी के वक्त जलाए जाते। शाह साहब ने अपने गिर्द हिसार कायम रखा था और तावीज पकड़कर जला रहे थे कि मैंने एकदम बेहोशी की हालत में चिल्लाना शुरू कर दिया। सब घर वाले कहते हैं कि मेरी आंखें उबल रही थीं, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। मैंने वो शोर शराबा किया कि सब हैरान रह गए। मुझे मत मारो, मैं लंगड़ा हो गया हूँ, मैंने तुम लोगों का क्या किया है? मैं चीखते हुए बोली। शाह साहब ने सवाल पूछा मगर मैंने कोई जवाब न दिया। इधर प्याज मुंह में डाला तो आंखें खोल दी। आखिर कब तक ये इलाज रहता? मेरी सेहत बुरी तरह गिर गई। कई महीने बीत गए। शाह साहब गुजरात चले गए। एक दोपहर जब मैं बेहोश थी मैंने अम्मी को देखकर आंखें खोली। अम्मी, खाने को कुछ दीजिए, मुझे सख्त भूख लग रही है। अम्मी प्याज लेने गई और प्याज लाकर मेरे सामने रख दी। मैंने गुस्से से प्याज जमीन पर दे मारे। क्यों तुमने हमें तंग कर रखा है? क्या चाहती हो? मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं एकदम बोली, और मैं उस जगह का रहने वाला हूँ जहाँ पर वीरान इलाका था। वो वीरान घर था। इसकी खाला ने बच्चे को नमाज के वक्त एक दरख्त के पास पेशाब करवाया था। इसका अपना एक लड़का भी हमारी गिरफ्त में है। सिर्फ आप लोगों की हमदर्दी और अच्छे सलूक की वजह से मुतासिर होकर इसे मारा नहीं। अगर हम चाहें तो इसे मार सकते हैं।
हमारी बच्ची का क्या कसूर है? हमने क्या किया है? आपने क्या करना था? आप सब अच्छे हैं। तुम करीम को जानते हो? अब्बू ने उससे पूछा। हाँ, जिसने हाजिरी के रजिस्टर में गड़बड़ की थी और चौकीदार को भी मारा था। ये ऐसी बात थी जो अब्बू के साथ हुई थी। ये सुनकर अब्बू हैरान रह गए। दूसरे दिन शाह साहब भी आ गए। उन्होंने आते ही मेरे गिर्द हिसार कायम करके पढ़ना शुरू कर दिया। मैं चीखती चिल्लाती रही मगर वो पढ़ते रहे। तुम इसको छोड़कर चले जाओ, शाह साहब जलाल में आकर बोले, वरना भस्म कर दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो मैं क्या हूँ? मैं जानता हूँ। अच्छा, हम इसे छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, शाह साहब गुस्से से बोले। पहले तुम हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कसम खाओ। मैं नहीं खाता हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम। तो तैयार हो जाओ मरने के लिए। अच्छा, मैं कसम खाता हूँ कसम। मैं इसे छोड़ देता हूँ। हाँ, जाते हुए कोई निशानी भी देते जाओ, समझे तुम? वो गुलदान पड़ा है, उसे गिराते जाओ। वैसे तो मैं लंगड़ा हो चुका हूँ। अगर मैं इसके साथ रहता तो सारी उम्र इसको फायदा पहुंचाता। जितना फायदा तुमने देना था दे चुके। अब इसको छोड़कर चले जाओ। अम्मी ना चाहते हुए भी बोली। गुलदान तो हवा से भी गिर सकता है, अबू बोले। बच्चों के स्कूल के बाहर जो पीपल का दरख्त है वो गिराओ, हम समझेंगे वाकई तुम चले गए। अभी इतनी बात हुई थी कि गुलदान जोर से गिरा और मैं भी रोना शुरू कर चुकी थी। बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। जब रात को मुझे होश आया तो बहुत से लोग मेरे गिर्द जमा थे। मेरे मोहल्ले के लड़के भागे भागे आए और बताया कि स्कूल के बाहर जो पीपल का दरख्त थे वो दरख्त गिर गया है। बहरहाल वो जा चुका था, मुझसे बदला लेकर वो जा चुका था। वक्त का पहिया चलता रहा लेकिन मैं सबके लिए अजनबी बन गई। जी हाँ, बचपन से वो मेरे साथ था और मैं किसी को पहचानती ही ना थी। वही मुझे चलाता था, उसी की वजह से मैं उड़ती थी। अम्मी के सिवा मैं किसी को ना पहचानती थी। सीढ़ियाँ चढ़ना मुझे बिल्कुल ना आता था। मैं खड़ी होकर जोर लगाती ऊपर जाऊं मगर न उठ सकती थी, न बैठ सकती थी। स्कूल की तमाम लड़कियां मेरे लिए अजनबी थीं। मैं कई कई घंटे बात न करती। हिबा, अब्बू अक्सर पूछते, अब्दुल्ला कहाँ है? वो किधर गया? वो मैं जवाब देती, आसमानी रंग के कपड़ों में मलबूस कहीं खो गया है। आप उसे ढूंढ लाइए ना। मैं उसके साथ ऊपर उड़कर तमाम मकानों के ऊपर घूम आऊंगी। फिर उसके बाद एक दिन हमारे पूरे इलाके में एक जबरदस्त धमाका हुआ और तमाम घरों में आग लग गई। दादाजान को एक शख्स ने आकर अम्मी के साथ बिठाया और पीछे पीछे चलने को कहा। बहन, वो शख्स बोला, ये वक्त रोने धोने का नहीं है। मकान को छोड़ें और अपनी जान बचाएं। हम रातों रात मकान के अंदर से निकलकर दूसरे शहर पहुंच गए थे। मैं पहचानती थी वो शख्स अब्दुल्ला था। जब हम दोबारा अपने मकान में आए तो हैरान रह गए। हमारा मकान मुआवजे के तौर पर बच गया था जबकि आसपास के सारे मकान गिरे पड़े थे। हमारी हर चीज सलामत थी। उस हादसे में मेरे कई रिश्तेदार स्कूल से वापस ही न आए थे। मेरा छोटा भाई भी स्कूल गया था पर वो जिंदा सलामत घर पहुंच गया। अब मैंने उससे पूछा तो वो बोला कि नीली टोपी वाला एक शख्स उसे स्कूल से निकालकर घर छोड़ गया। मेरे साथ अब फिर से वही मामलात शुरू हो गए। अब्दुल्ला का अम्मी जानती थी, उसको देखा था। अम्मी ने वहीं से जोर से पुकार कर कहा, अब्दुल्ला, सच सच बताओ, तुम यहाँ पर हो ना तुम? पहले तुमने हमें बचाया, हमारे मकान को गिरने से बचाया, हम सबकी हिफाजत की। फिर अब मेरी बेटी को तंग कर रहे हो। क्यों? तुमने कसम खाई थी ना कि तुम दोबारा नहीं आओगे? हाँ, मैंने कसम खाई थी, मगर अब तो शाह साहब फौत हो गए हैं, इसलिए मेरी कसम खत्म हो गई। अब मैं शाह साहब की कसम से आज़ाद हो गया हूँ। अब इन वाक़यात को कई साल गुजर चुके हैं। मैं किसी जिन भूत का नाम सुनकर ही डर जाती हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई रौनक नहीं रही, हर रौनक बेरौनक हो गई। मुझे अब भी ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ है, मदद तो करता है लेकिन मुझे अजियत भी देता है। मेरा निकाह अरसलान से हो चुका था। मेरा निकाह हो गया लेकिन ऐन रुखसती वाले दिन अब्दुल्ला आ गया और उसने कहा, ये मेरी बीवी है और इसकी शादी किसी से नहीं हो सकती है, इसलिए इसके शौहर को या तो मैं मार दूंगा या फिर ये अभी इसी वक्त तलाक दे। क्योंकि निकाह वाले दिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, वो अपनी दुनिया में गया हुआ था और मजबूरन अरसलान की ज़िंदगी के लिए, यानी मेरे शौहर की ज़िंदगी के लिए, उन्हें मुझे तलाक देनी पड़ी। आज मैं तन्हा हूँ। अब्दुल्ला ने मुझसे निकाह करने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं मानती और फिर उसने मुझे अजियत देकर मेरे अंदर आकर मुझसे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया और मुझे अपनी बीवी बना लिया। मैं उसी के कब्ज़े में हूँ। वैसे वो मेरी मदद करता है, मुझे हर जगह उड़ा कर लेकर जाता है।
میں ایک پل میں یہاں تو ایک پل میں دوسری جگہ ہوتی ہوں، لیکن میں صرف اسی کی ہو چکی ہوں۔ وہ مجھے مارتا بھی ہے لیکن مجھ سے محبت بھی کرتا ہے۔ بیوی بنا کر اس نے مجھ سے ہر قسم کا رشتہ رکھا ہوا ہے، لیکن سب کچھ اس کی مرضی سے ہے، میری مرضی سے نہیں۔